Hello everyone, welcome to Ace the CLAT. In this video, I'll be giving you a brief overview about CLAT 2024. Before that, let's give a brief overview of my YouTube channel Ace the CLAT. Alright, so Ace the CLAT started its journey on in and around October 2020. Okay, हमने 2021 के लिए काफ़ी कुछ काम किया था CLAT 2021 के लिए, फिर CLAT 2022 के लिए भी काफ़ी काम किया था. However, CLAT 2023 के लिए this channel was almost non-functional. On the other hand, CLAT 2024 की जहाँ तक बात है, we have a lot of plans and I am going to make sure that all these plans are executed. I am Ritik Sinha and I am currently a law student at Maharashtra National Law University Mumbai. So I am in my third year right now. I gave my CLAT in 2020 itself, the new pattern one, and since then I have been mentoring the students to prepare for it. I've already told you what Ace the CLAT has done, and now to talk about what will be our modes of communication. So primarily there would be 2 or 3 modes of communication. Firstly, of course, is this YouTube channel Ace the CLAT, right? Secondly would be our Telegram channel Ace the CLAT on Telegram, and there we would be giving out all the documented content that we have. For example, it could be your mock test, it could be your sectional tests, it could be your subject wise test or sectional test or any other kind of information जिसके लिए मुझे वीडियो बनाना उतना वर्थ इट नहीं लगे, जो जिसका एक सिंपल पोस्ट से काम हो जाए, राइट? उसके लिए हमने एक टेलीग्राम चैनल भी बना के रखा है. You can join the Telegram channel on Telegram by searching Ace the CLAT, or on the other hand you can join our Telegram channel by going to the description of this video down below and वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी. Thirdly, जो हमारा तीसरा mode of communication होगा वो होगा mentorship के थ्रू. So I'd be launching the mentorship program for CLAT 2024 very soon. It was a great success in 2021. It was a greater success in 2022. Alright, so that mentorship program would be our third mode of communication. So this was the brief overview of what Ace the CLAT is doing right now. So this is what Ace the CLAT is going to do. मैं वीडियो कोर्सेज लॉन्च करने का भी सोच रहा हूँ. एक वीडियो कोर्स पे इनफैक्ट काम भी कर रहा हूँ, कुछ लेक्चर्स रिकॉर्ड भी हो चुके हैं उसके लिए. एंड अदर देन दैट जो भी अपडेट होगा वो आपको इस चैनल पे मिलते ही रहेगा. बहुत सारा कंटेंट यूट्यूब के लिए भी रिजर्व्ड है. ओके, सो सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी. CLAT 2024 की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी ऐसे इंसान को आप जानते हो जो कि CLAT 2024 की तैयारी करने वाला है, देन इट वुड बी आई वुड बी रियली ग्रेटफुल टू यू अगर आप उसे उस इंसान को इस चैनल के बारे में बता सको. ओके, सो लेट्स गेट बैक टू व्हाट द सेकंड पर्पस ऑफ दिस वीडियो इज, व्हिच इज टू गिव यू अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ CLAT 2024. ओके, इस वीडियो को कुछ चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है. आप डिस्क्रिप्शन में या फिर यूट्यूब प्लेयर में आपके काम के अकॉर्डिंग जो सेक्शन आपको रेलेवेंट लगे आप वहाँ से जा करके उस चैप्टर को देख सकते हो. लेट्स गेट बैक इनटू द वीडियो. Okay, so moving on to the slides so that we can divide this video into chapters and उससे आपको आसानी हो सके. What exactly is CLAT and what purpose does it solve? इस स्लाइड में हम इस बारे में बात करेंगे. So CLAT देखो कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट को बोलते हैं. कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट ये बेसिकली इंडिया में जितने भी आपके NLUs हैं, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन सारे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ का एक एग्ज़ाम होता है विच इज़ CLAT. एंड इन सारे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ में मेरिट के बेसिस पे एडमिशन होती है, और उस मेरिट का बेसिस क्या है? कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट में जो आपकी रैंक होती है. ओके, सो फॉर एग्जांपल रैंक 1 to like 70 तक NLSIU बैंगलोर को मिलता है ना. 71 से क्लोज टू 150 में NU JSN नालसार आता है. ओके, अच्छा, एक NLU है NLU दिल्ली जो अभी तक CLAT में मर्ज नहीं हुआ है. क्या? ओके, उसका एक अलग से एग्ज़ाम होता है ELIT करके. एंड सो CLAT का पर्पस क्या है? जो भी सारे NLUs हैं एक्सेप्ट फॉर NLU दिल्ली, उन सब के लिए एक कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट तैयार करना. अच्छा, इसके अलावा देर आर अ फ्यू मोर कॉलेजेस एज वेल जो कि CLAT के रैंक्स को एक्सेप्ट करते हैं, जैसे कि आपका निर्मा हो गया, आपका नारसी मॉन्जी हो गया. ओके, कुछ केसेस में क्राइस्ट भी होता है, जनरली नहीं होता बिकॉज उनका एक अलग से एग्ज़ाम होता है. सो ये सब कॉलेजेस हैं, है ना. UPES देहरादून है और आई बिलीव लॉयड भी है ना. ये सारे कॉलेजेस जो हैं अदर दैन NLUs, ओके, NLUs तो हैं ही एक्सेप्ट फॉर NLU दिल्ली, एंड ये सब कुछ अच्छे प्राइवेट लॉ स्कूल्स एज वेल, दे ऑल्सो टेक देयर एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ CLAT. So this is what this slide was all about. Let's move to the next slide. Who are the test takers? So देखो CLAT जो है
यूजी के लिए भी है एंड पीजी के लिए भी है। इस चैनल का मकसद क्या है? जो यूजी के स्टूडेंट्स हैं उनकी हेल्प करना। यूजी यानी कि अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। नॉर्मली आपको बीए, एलएलबी या बीबीए, एलएलबी, अगर आप एनालिस्ट जीएनएलयू गांधीनगर में जाओगे तो बीएम, बीएससी, एलएलबी, बीकॉम, एलएलबी, ये सब के भी ऑप्शंस मिल रहे हैं। सो नॉर्मली बीए या फिर बीबीए, एलएलबी के एडमिशन के लिए होता है वो कौन दे उस फील्ड में या फिर इस कोर्स में कौन एडमिशन ले सकता है? जाहिर है 12th स्टैंडर्ड जिसने पास कर लिया हो। जो भी 12th पास है ना, ऑल ऑफ देम कैन अप्लाई फॉर दिस एग्जामिनेशन। ओके, 12th स्टैंडर्ड के हैं अब सारे बच्चे, या फिर ड्रॉप लिए हुए हैं, कोई 1 साल लेता है, कुछ केसेस में लोग 2 साल भी ड्रॉप लेते हैं, है ना। एंड कुछ केसेस में मैंने जैसे मेंटरशिप प्रोग्राम्स में इन द पास्ट आई हैव सीन कि जो कि ग्रेजुएट हो चुके हैं कि वो भी क्लैट के थ्रू क्लैट यूजी में एडमिशन लेने की तैयारी कर। दीज पीपल आर द टेस्ट टेकर्स। नॉर्मली अगर मैं एज की बात करूँ, 17 से 19-20 साल उनका जनरली एज होता है। हाउ मच टाइम डज इट टेक टू प्रिपेयर फॉर दिस? This is a tricky question and not, I cannot give you an objective answer for this. Normally recommend किया जाता है कि आप 6 से लेकर के 12 महीने तक तो 2 ही इस एग्जामिनेशन को, ओके। सो हम जनवरी 2023 में, दिसंबर 2023 में क्लैट 2024 होने वाला है, which means it is about time that you should start your preparation and start it seriously. 6 months में कौन प्रिपेयर कर सकता है? जिसकी इंग्लिश पहले से काफ़ी अच्छी हो, ओके। उसके सारे बेस जो है इंग्लिश में, ग्रामर और उसकी वेरी इंपॉर्टेंटली कॉम्प्रिहेंशन स्किल काफ़ी अच्छी हो और वोकैबुलरी काफ़ी अच्छी हो, उसके लिए 6 महीने इज़ मोर देन इनफ। ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो कि 2 से 3 महीने में, कुछ एक्सेप्शन केसेस में 1 महीने में टॉप 5 लॉ स्कूल्स चले जाते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस मिल जाएंगे जो कि 2 या 3 महीने के प्रिपरेशन के बाद भी टॉप 10 एनएलयूज में जा सकते हैं, मेरिट पे जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स। सो ये बात हो गई कि कितना टाइम लगता है। अब बात करते हैं कौन कौन से सेक्शंस है इस पेपर में, एंड बेसिकली इस पेपर का एक ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूँ मैं। सो क्लैट जो है पहले 200 मार्क्स का होता था, 2020 में, ओके, इसका पैटर्न चेंज हो गया, यानी 2020 से इसका पैटर्न चेंज हो गया। अराउंड नवंबर 2019 में जो प्रोफेसर फैज़ान मुस्तफ़ा हैं, इस समय वो वाइस चांसलर हैं नालसार हैदराबाद के, उन्होंने वो उस समय कंसोर्टियम के प्रेसिडेंट थे, उनके नेतृत्व में, है ना, उनके लीडरशिप में और भी कई सारे जो वीसीज हैं उनके गाइडेंस में क्लैट ने डिसीजन लिया कि अब हम एग्जामिनेशन को मोर एंड मोर कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड बनाएंगे, जिससे कि इंग्लिश जो है दैट मेंट कि अब इसमें खाली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूछे जाने लगे। लॉजिकल रीजनिंग में क्रिटिकल रीजनिंग का वेटेज एक्सपोनेंशियली बढ़ गया। मैथ फिर भी अभी भी 10th स्टैंडर्ड के मैथमेटिक्स तक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। लीगल रीजनिंग अब पैसेज बेस्ड हो गया, ओके, एंड करंट अफेयर्स भी पैसेज बेस्ड। तो इंग्लिश में बेसिकली क्या पूछे जाते हैं? 30 क्वेश्चंस आर देयर, 5 से 6 आरसी होती है अलग अलग जॉनर्स पे, अलग अलग जॉनर पे, एंड हर एक पैसेज में 5 से 6 क्वेश्चंस, कुछ केसेस में 4 क्वेश्चंस भी। लॉजिकल रीजनिंग में क्या होता है? अगेन 5 से 6 कॉम्प्रिहेंशन, या फिर 5 से 6 आपका ये, है ना, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज होता है। we basically reading comprehension ही है, but there is a difference in the types of questions that are asked, okay। इसमें मोर एंड मोर क्रिटिकल रीजनिंग के थ्रू के तरफ ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं, मेन आइडिया बेस्ड हो गया, या फिर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस जो हो गया, आपका स्ट्रेंथन वीकेंड क्वेश्चन हो गया, इस तरह के क्वेश्चंस ज़्यादा। फिर मैथ में क्या होता है भाई? मैथ्स में ये होता है सर कि जो बेसिक 10th स्टैंडर्ड तक की मैथमेटिक्स है, और उसमें भी ट्रिग्नोमेट्री ये सब नहीं, आज तक तो नहीं पूछा गया है, उसमें जो बेसिक अलजेब्रा क्वेश्चंस होते हैं, है ना, एंड जो बेसिक कैलकुलेशन क्वेश्चंस होते हैं, उस पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जाता है। सो बेसिक अलजेब्रा क्वेश्चंस जो होते हैं एंड कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं, ऐसे पिछले 3-4 साल में देखा गया है कि इन पे ही क्वेश्चंस बनते हैं। अब लीगल रीजनिंग में क्या होता है? लीगल रीजनिंग में आपको एक पैसेज दिया जाता है, कई बार वो सीआरपीसी के ऊपर होता है, कई बार वो सीपीसी, ये सब जनरली इस पे नहीं। सीआरपीसी इज बेसिकली क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सीपीसी इज सिविल प्रोसीजर कोड, कभी आईपीसी पे जहाँ पे क्राइम्स डिफाइंड है, इंडियन पीनल कोड, या फिर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, या फिर जनरल किसी एक जजमेंट पे, है ना, या किसी एक लीगल इशू पे एक पैसेज होता है अराउंड 400 वर्ड्स का, एंड उस पैसेज पे कुछ करीब 5 सिचुएशंस आपको दी जाती हैं, ओके।
वो 5 सिचुएशंस आपस में कनेक्टेड भी हो सकती हैं, ज़्यादातर समय इंडिपेंडेंट होती हैं। एंड उस सिचुएशन को जो है आपको पैसेज में दिए गए इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग सॉल्व करना होता है। एंड ABCD ऑप्शन चॉइसेस होते हैं, एक करेक्ट आंसर होता है। सो ये होता है लीगल रीजनिंग में। एंड जहाँ तक 150 MCQ की बात है, मैं यहाँ पे बताना भूल गया, +1 फॉर अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स। एंड अगर आपने गलत रिस्पॉन्स दिया 0.25, अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया तो 0। ओके, ये हो गई लीगल रीजनिंग की बात। हमने मैथ की बात कर ली, हमने लॉजिकल रीजनिंग की बात कर ली, हमने इंग्लिश की बात कर ली। करंट अफेयर्स कई मामलों में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिससे कि देखते हैं करंट अफेयर्स में क्या आता है। ओके, जो पिछले 8 से 12 महीने का मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं, है ना, जो पिछले 8 से 12 महीने के मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं करंट अफेयर्स के, उसमें से देयर आर 40 क्वेश्चंस ओवर हियर। बेसिकली 40 क्वेश्चंस में से 8 पैसेज बनते हैं और 8 into 5 क्वेश्चंस बनता है। ठीक है, कभी कभी 7 into 6 होता है, कभी, है ना, 7 पैसेजेस होते हैं, किसी में 6 क्वेश्चन होता है, किसी में 7 क्वेश्चन होता है, पर जनरली 8 इवेंट होता है, 8 पैसेज होता है और हर एक पैसेज पे 5 क्वेश्चन होते हैं। हर एक इवेंट पे जो आता है ना पेपर में, उसको अलग अलग पर्सपेक्टिव से उस इवेंट के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो एक सिंपल क्वेश्चन करंट अफेयर्स के रिलेटेड भी हो सकता है, उस टॉपिक के से रिलेटेड एक स्टैटिक जीके का भी क्वेश्चन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बाबरी मस्जिद का केस आ जाता है ना क्लैट 2020 या 2021 में, उसके बाद तो ये इरेलेवेंट नहीं, कम रेलेवेंट हो गया, तो उस पर करंट अफेयर्स पे ये पूछा जा सकता था कि कौन थे प्रिसाइडिंग जज उस केस के। और स्टैटिक जीके क्या हो सकता था कि बाबरी मस्जिद किसने बनाया था और कब बनाया था, हु बिल्ट एंड व्हेन डिड ही बिल्ड इट। ओके, सो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं आप करंट अफेयर्स में एक्सपेक्ट करते हो। दिस इज बेसिकली व्हाट क्लैट इज ऑल अबाउट। ओके, आई होप आपको जो पूरा इस पेपर का सार है, समरी है, वो समझ में आ गया होगा। दैट वॉज द पर्पस ऑफ दिस वीडियो। क्लैट क्या होता है, व्हाट पर्पस डज इट सॉल्व, हु आर द टेस्ट टेकर्स, how much time does it take to prepare for this paper, and what all sections do we have, and a brief overview of each section। मैंने सारी बातें कर ली। कोई भी डाउट हो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में डाल दो। एंड वीडियो अगर पसंद आया हो प्लीज़ शेयर योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन एज वेल, गिव अ लाइक टू दिस वीडियो। एंड जो बाकी आपके कोई रिलेटिव हो सकता है, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है जो ई क्लैट 2024 की तैयारी कर रहा है या तैयारी करना चाहता है, उससे आप इस चैनल का लिंक शेयर कर सकते हो, सो दैट वो भी सब्सक्राइब कर सके और क्लैट एजुकेशन के लिए क्वालिटी क्लैट एजुकेशन का आनंद उठा सके। आपके और कोई क्वेरीज हैं तो यू कैन सेंड मी at info@acetheclad.in। ओके, एंड जो हमारी वेबसाइट है दैट इज़ ऑल्सो acetheclad.in। इसे आप बुक मार्क कर सकते हो अपने रेस्पेक्टिव डिवाइसेस पे। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।